Hello everyone. So in today's video, we'll try to understand that how can we add or subtract like fractions and कैसे कोई सी भी जो fractions हैं mainly like fractions how can we add them and subtract them. तो like fractions exactly होते क्या हैं? The fractions which have got the same denominator. जिन भी fractions के अंदर आपका denominator जो है वो अगर same होता है तो those two fractions or three fractions will be considered as like fractions. तो हम इन fractions को कैसे add कर सकते हैं? It is very easy. एक्चुअली अगर आपको कोई से भी लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो देयर आर थ्री स्टेप्स टू इट। वैसे ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है हमको, अगर इजीली अगर समझना चाहे इसको तो वी कैन से दैट हमें सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करना होता है लाइक फ्रैक्शंस के अंदर और डिनोमिनेटर्स को रिटेन करना होता है। तो दे हैव गिवन थ्री स्टेप्स, वी कैन लुक इनटू दीस स्टेप वंस। So step one में इन्हें दे रखा है that add the numerators, you have to add the numerators, then you have to retain the common denominator, आपको common denominator जो है उसको retain करना है and write the fraction as result of step one and result of step two. तो result of step one क्या है जो आपने numerators को add करा है और step two क्या है that is that you have retained the common denominator, मतलब आपने जो denominator यहाँ पे था इन दोनों like fractions का उसको retain करा है, उसको as it is रहने दिया है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है 1/8 plus 1/8, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? ऐड द न्यूमरेटर्स। 1 plus 1 will give us 2 and retain the common denominator। तो जो डिनोमिनेटर पहले था हमारे पास इन दोनों फ्रैक्शंस में वही हमको सेम इधर रखना है। सो दिस 1/8 plus 1/8 will give us 2/8 as the answer। अगर हम इधर यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखें 2/5 plus 3/5, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2 plus 3 is 5 and 5 will be the common denominator, so it will be 5/5। और हमने ये पहले वाली क्लास में पढ़ रखा है कि whenever we are having the same denominator and same numerator and same denominator, उसका हमेशा आंसर हमारे पास 1 होता है। ठीक है, so 5 1 5 and 5 1 5, 1/1 will become eventually 1। तो हम इससे जो रिलेटेड जो एक्सरसाइज है हमारी 7.5 इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। आई डोंट थिंक इट विल टेक टू मच टाइम। So write these fractions appropriately as additions or subtractions। तो यहाँ पे अगर हम a वाले पार्ट में देखें फर्स्ट क्वेश्चन के, so we can see that we have been given two figures और हमें यहाँ पे एक थर्ड फिगर दे रखा है और यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है और यहाँ पे आपको डैश दे रखा है। तो यहाँ पे आपको डैश की जगह एक साइन लगाना है, either it could be addition or either it could be subtraction। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वाले फिगर के अंदर एक रीजन शेडेड है एंड नेक्स्ट फिगर देयर आर टू रीजन शेडेड एंड एज इन टोटल देयर आर थ्री रीजन शेडेड आउट ऑफ फाइव रीजन। So we can see that addition is taking place here। यहाँ पे हम addition कर रहे हैं। What about this B part? B part में हम देख सकते हैं कि in this figure all these parts are shaded, whereas in this figure only three parts are shaded। So and when I put equals to sign, तो यहाँ पे जो end में result है उसके अंदर सिर्फ दो parts ही shaded है। तो what does it says कि मैंने जब in five parts shaded में से three parts को minus किया, so I'm only left with two parts which are shaded। So here subtraction sign will come। What about the C part? C part में अगर हम देखें तो एज इन टोटल यहाँ पे दो रीजन सीडेड थे, यहाँ पे थ्री थे, एज इन टोटल यहाँ पे फाइव रीजन सीडेड है। सो अगेन इट इज एडिशन हैपनिंग एट दिस प्लेस। तो सेकंड क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। इफ आई ऐड 1/18 plus 1/18 आई हैव टू रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर और एंड 1 plus 1 will give me 2, and if I simplify this term, so it will be 2 ones are 2 and 2 nines are 18, so I'll be left with 1/9। So 1/9 is the answer which we are trying to find। What about this B part? B part says, rather it's solve it here on the blank page, 8/15 plus 3/15, 8/15 plus 3/15। So here I have to retain the common denominator which is 15, and 8 plus 3 will be what? It will be 8, you can 9 10 11, 11/15। So as it is already in its simplest form, मैं इसको इधर ही छोड़ दूंगा and 11/15 is the answer। अगर आपको simplest form में डाउट है तो you can go through my previous videos। मैंने जो पहले videos upload कर रखे हैं उसमें मैंने explain कर रखा है how can we find the simplest form। What about this 7/7 minus 5/7? These are again like fractions, so हम इसमें denominator को retain कर लेंगे and I'll do 7 minus 5 which will give me 2/7। So this is the answer। Moving on to the D part. D part says 1/22 plus 21/22। So here I'm going to retain the denominator which is 22 and I'm going to add 1 plus 21, so it will give me 22/22, and
मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो अपन का जो हमेशा आंसर आता है दैट इज 1. सो हियर द आंसर विल बी 1. What about this e part? E part says 12 upon 15 minus 7 upon 15. तो यहाँ पे what is हमें यहाँ पे क्या करना है 15 क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर तो उसको रिटेन करना है and I have to subtract this 12 minus 7. That will give me how much? 7 3 5. 5 upon 15 and 5 ones are 5 and 5 threes are 15. So I'll be left with 1 upon 3 as its simplest form is 1 upon 3. Now moving on to the f part. F part says 5 upon 8 plus 3 upon 8. Retaining the common denominator which is 8 and I'll add 5 plus 3, so it will give me 8 upon 8. 5 plus 3 is 8 right, so it will be 1. What about the g part? G part में 1 minus 2 by 3. अब इसमें इन्होंने एक हिंट दे दिया है बिकॉज 1 को हम 3/3 भी लिख सकते हैं, 1 को 4/4 भी लिख सकते हैं, हम 1 को ऐसा कोई सा भी फ्रैक्शन लिख सकते हैं जिसके अंदर न्यूमरेटर भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2/3 के अंदर डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे 3 है. तो हमको इसको इस नंबर से डिवाइड करना है, ऐसे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है जिसका डिनोमिनेटर भी 3 हो. तो व्हाट 1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय, 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 3/3 से. तो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 1 को 3/3 लिख दूंगा -2/3. तो हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाए कि why I am writing this one as 3/3, but 1 can be written as any fraction which has got the same numerator and as well as same denominator. तो मैं यहाँ पे इसको 3/3 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो इधर जिस फ्रैक्शन से मेरे को इसको सब्सट्रैक्ट करना है उसके अंदर डिनोमिनेटर 3 है. तो आई शुड हैव 1, मतलब मेरी 1 को भी मेरे को ऐसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर डिनोमिनेटर 3 हो. तो आई कैन ओनली डू इट बाय मेकिंग इट 3/3. So here I'm going to retain the common denominator which is 3 and 3 minus 2 will become 1. So the answer will be 1 upon 3. G. Now moving towards H part, this question, it says 1 upon 4 plus 0 upon 4. In this case, I'm going to retain the common denominator which is 4 and 1 plus 0 will give me 1 again. So the answer will be 1 upon 4. और वैसे भी अगर हम 0.4 जैसे है यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा है, अगर if I would have मतलब कोई सा भी फ्रैक्शन के अंदर अगर 0 आपका न्यूमरेटर में है तो ऑटोमेटिकली वो जो फ्रैक्शन है वो 0 बन जाता है. तो 1/4 plus 0 will be obviously 1/4 only. So that's why हम इसको ऐसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे. What about this first part? Now this can be a bit tricky. Not exactly tricky, but इसके अंदर थोड़ा सा टेक्निक यूज होएगा. 3 minus, this is I part, right? 3 minus 12 upon 5. In this case, see whenever we are writing any number, जब भी हम कोई सा नंबर लिख रहे हैं और उसके नीचे कोई सा भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख रहा था तो उसका मतलब ये होता है दैट उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है. बिकॉज किसी भी नंबर के किसी भी नंबर के नीचे अगर आप मतलब कुछ भी नहीं लिखा है तो हमेशा इसका मतलब ये होता है कि उसके नीचे फ्रैक्शन 1 है. बिकॉज अगर मान लो मैं 3/1 लिखूँ और अगर मैं 3 को 1 से डिवाइड करूँ तो इट विल बी 1 3 3. आई विल बी लेफ्ट विद 0. तो बेसिकली 3/1 क्या हो गया, इट इज 3. दैट्स वाई इसलिए हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे 3/1 minus 12/5 लिख देंगे. अब बिकॉज दीज टू आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस और अभी तक हमने सीखा नहीं है कैसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस को सब्सट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं. तो इसलिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज हम इस 3/1 को इस फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे सो दैट उसका डिनोमिनेटर 5 आ जाए. वी आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/1 so that we get another fractions or another equivalent fraction which has got denominator as 5. तो उसके लिए मेरे को इसको 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से एंड 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से एंड it will become 5 0 15 upon 5 minus 12 upon 5. So in this case I can retain this common denominator. हमारे पास दोनों fractions के अंदर same denominator आ गया तो I can retain the common denominator which is 5 and I can just subtract 15 minus 12 and that will give me 3/5. So 3/5 is the answer which we were trying to find. ठीक है, अगर मैं 3 minus 12/5 करता हूँ तो the answer at the end which I'll get is 3/5. So we will be needing another page.
Now moving on to the third question. It says Shubham painted 2 by 3 of the wall space in his room. His sister Madhvi helped and painted 1 by 3 of the wall space. How much did they paint together? So for explaining this question, I'm going to take help of paint. मान लो हमारे पास एक ये वॉल है और इसके 3 इक्वल पार्ट्स हैं. सॉरी थोड़ा सा ढीला हो गया. Somewhat like this. और बेटर एक बार थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं इसको. सॉरी. ओके, तो ये अपना वन पार्ट हो गया एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. तो हमारे पास 3 पार्ट हो गए एक वॉल के और इसके अंदर दे रखा है दैट 2 by 3 ऑफ द वॉल वॉज पेंटेड बाय शुभम. शुभम ने क्या करा, उसके 2 पार्ट्स पेंट कर दिए वॉल के, है ना. तो these 2 parts were painted by शुभम. There are total 3 parts of the wall और 2 parts शुभम ने पेंट कर दिए एंड माधवी ने हेल्प किया 1 by 3 पार्ट ऑफ द वॉल स्पेस. तो उसने 1 by 3 कर दिया. अगर माधवी को मैं अगर ग्रीन कलर से दिखाना चाहूँ, मान लो उसने ग्रीन कलर से पेंट किया, तो माधवी ने ये 1 पार्ट पेंट किया और शुभम ने 2 पार्ट पेंट किया आउट ऑफ द टोटल 3 पार्ट्स. तो एज इन टोटल अगर मैं देखना चाहूँ तो कितना पार्ट पेंट हुआ है वॉल का. सो पूरी वॉल ही पेंट कर दी इन लोगों ने अगर बेसिकली देखा जाए तो. एंड वी कैन ऑल्सो डू इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन अगर हम इनको ऐड करना चाहें. तो शुभम, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थर्ड क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन नंबर 3. तो शुभम पेंटेड सॉरी is equals to 2 by 5 of the wall, है ना. 2 by 3 part of the wall. You could write like this or you could instead यहाँ पे लिख सकते हो the part painted by शुभम, है ना, is equals to 2 by 3. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ part painted by शुभम, ठीक है, rather of writing it as शुभम painted like that, है ना. और यहाँ पे अपने पास है माधवी, part painted by Madhvi is equals to 1 by 3. So it's asking how much did they paint together. They painted together is equals to 2 by 3 plus 1 by 3. तो यहाँ पे हम कॉमन फ्रैक्शन जो है उसको रिटेन करेंगे, सॉरी कॉमन डिनोमिनेटर को रिटेन करेंगे, दैट विल बी 3 एंड 2 plus 1 will give me 3 by 3. So basically it will be 1. What does 1 means here? पूरी वॉल उन्होंने पेंट कर दी, है ना. They painted 3 parts of the total 3 parts or they painted the whole wall. You could write like this, है ना. चलो अगर अपन यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखें, फाइंड इन द मिसिंग फ्रैक्शंस. तो what number should I subtract from 7 so that I can get 3? यहाँ पे क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है 10 10, इसको यहाँ पे अपन सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, 7 by 10 minus some number will give me what? Will give me 3 by 10. तो मेरे को 7 by 10 में से क्या सब्सट्रैक्ट करना चाहिए कि मेरे पास 3 by 10 आ जाए. तो फॉर दैट हमें पता है कि यहाँ पे 10 और 10 कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं दोनों के. तो बेसिकली अगर हम सिर्फ न्यूमरेटर साइड देखें कि मेरे को 7 में से क्या सब्सट्रैक्ट करूँ मैं कि मेरे पास 3 आ जाए, तो आई नो आई शुड सब्सट्रैक्ट 7 by 5, 5 6 7 no so by 4, that will be 4 by 10. The missing number which we are trying to find here is 4 by 10. Question 4th का this one was A part. What about the B part? B part को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? B part is saying box minus 3 by 21 is equals to 5 by 21. तो मैं कौन से नंबर से 3 को माइनस करूं? देखो यहाँ पे 21 21 सेम डिनोमिनेटर, सो इन दिस फ्रैक्शन जो बॉक्स वाला फ्रैक्शन है उसमें भी मैं डिनोमिनेटर 21 ही रखना पड़ेगा. बस हमें अब न्यूमरेटर का देखना है कि मैं कौन से नंबर से 3 को माइनस करूं
कौन से नंबर में से 3 माइनस करूँ कि मेरे को 5 मिल जाए. तो if I minus 8, like 8 minus 3 is 5, that's why I can keep here as 8 minus 3 is equals to 5 by 21. तो ये जो मेरे पास मिसिंग नंबर है that will come 8 by 21. Moving on to the C part. C part says box minus 3 by 6 is equals to 3 by 6. बेसिकली अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है. डिनोमिनेटर सेम है इस केस के अंदर, तो जो भी आंसर रहेगा उसका भी डिनोमिनेटर 6 ही रहेगा. और इस मैं 3 कौन से नंबर से 3 माइनस करूँ कि मेरे पास 3 आ जाए. सो आई शुड माइनस इट बाय 6. 6 minus 3 will give me 3. और सॉरी, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दैट विल बी 6. सो द आंसर which I'll get is 3 by 6. तो मिसिंग नंबर कौन सा था आपका? That was 6 by 6. Moving on to the D part. Sorry. D part says box plus 5 upon 27 is equals to 12 upon 27. तो अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है दोनों. तो उधर जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी बॉक्स रहेगा उसके अंदर 27 ही डिनोमिनेटर रहेगा. प्लस मैं 5 में क्या ऐड करूँ कि मेरे को 12 मिल जाए. तो 5 plus 7 is 12. So I'll just write here 7 upon 27 upon 5 upon 27 is equals to 12 upon 27. So the missing number is 7 upon 27. Now अगर आपको इस वाले क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. फिर एक और तरीका होता है इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. तो अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आएगा तो आई विल एक्सप्लेन इट विद अनदर मेथड आल्सो. बट आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो इफ यू आर नॉट गेटिंग इट थ्रू दिस मेथड. Now moving on to the last question, which is the fifth part. Sorry, fifth question. It says Javed was given 5 by 7 of a basket of oranges. जावेद को 5 by 7 मतलब उनने फ्रैक्शंस में दे रखा है. फॉर एग्जांपल देयर आर 7 ऑरेंजेस उस बास्केट के अंदर, तो जावेद को 5 मिले. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बास्केट, है ना. बास्केट के अंदर 7 ऑरेंजेस थे एंड जावेद को 5 मिले. फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में बोल रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग इट इज एन एब्सोल्यूट नंबर. तो कितने फ्रैक्शन ऑरेंज के बास्केट के अंदर रह गए थे. टोटल ऑरेंजेस कितने थे बास्केट के अंदर. टोटल ऑरेंजेस as in if we look it in the form of fraction, total oranges in basket is equals to 7 by 7. Yeah. Oranges given to Javed is equals to 5 by 7. ठीक है. Oranges left in basket. बास्केट में कितने ऑरेंजेस बच गए जब 7 by 7 ऑरेंजेस बास्केट में थे और उसमें 5 by 7 ऑरेंजेस जावेद को दे दिए गए. तो कितने ऑरेंजेस बच गए. 7 by 7 minus 5 by 7. So the answer will come as 2 by 7. So the total number of oranges which are left in the basket are 2 by 7 in the form of fraction. This is the answer. तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 7.5. In the next class we'll be doing the exercise number 7.6. उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि how can we add unlike fractions. जिन fractions के denominator different होते हैं उन fractions को कैसे add कर सकते हैं. तो अगर इस वाली एक्सरसाइज में आपको कुछ भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो. या फिर उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन. So that's all for today. Thanks for watching.